Good morning, students. Today we are going to review the chapter quickly. So our chapter is the chemical reaction and equation. In this chapter we are going to study about the different types of chemical reaction and equation, and here only a quick view. First of all, meaning of chemical reaction. Chemical reaction means transformation of substance into new chemical. So the thing is, it is the conversion of substance into a new chemical, and this is called the chemical reaction. There are four types of chemical reactions: addition reaction, decomposition reaction, substitution, and the redox reaction. Substitution reaction is also called as the displacement reaction, which we will take further that what is the meaning of the displacement reaction. So we are having four types of reactions: addition reaction, combination reaction, decomposition reaction, substitution, and the redox reaction. Now these are the characters of a chemical reaction. In every chemical reaction there is the evolution of gas, there is the formation of precipitate, change in color, change in temperature, change in state, and the formation of new substances. These six characters are essentially present in chemical reaction. May or may not, some reactions, some characters will go eliminated, but in the major conditions all the six characters are present. Now we are moving towards the addition reaction or the combination reaction. Combination reaction in which this single product is formed when the combination of two or more reactants, here calcium oxide and water, both are reacting, and calcium hydroxide, that is the single product, is formed. That is why this reaction is called the combination reaction. The reaction can be exothermic as well as endothermic. ये इसी का पार्ट है, दैट इज़ वाई हम इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं. दिस इज़ द पार्ट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. Exothermic and endothermic reaction. Exothermic reaction means which release the heat and arises the temperature of the surrounding. Example, respiration. ये बुक में क्वेश्चन है and this question also came into the board. So ध्यान रखें इसको, that respiration is the example of exothermic reaction. This is the example, this is the respiration. Respiration में होता क्या है? It is the oxidation of food. This is the glucose. ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड मेन थिंग एनर्जी इज रिलीज्ड. सो दिस इज द रेस्पिरेशन, एंड बिकॉज in this reaction energy is released, that is why it is called the exothermic reaction. Now the endothermic reaction, it involves the absorption of heat and thus it cools. ये याद रखेंगे, it cools the surrounding. That is why it is called the endothermic reaction. Next reaction is decomposition reaction. That means breaking. जब कोई चीज़ ब्रेक होती है, टूटती है, it is opposite to the addition reaction. देखें यहाँ पर addition reaction में क्या था, A plus B gives rise AB. अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा लिख दूंगा, AB gives rise A plus B, that will be the decomposition reaction. यहाँ पर देखें, सोडियम क्लोराइड एक सब्सटेंस है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, इट गिव्स राइज क्लोरीन एंड द सिल्वर. दिस इज़ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स होते हैं, जैसे थर्मल ब्रेकिंग बाय द हीट. सेकेंड होता है फोटोलाइसिस. फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जैसे ये एग्जांपल है फोटोलाइसिस, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम में आती है. दिस इज़ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एक होती है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी, करंट के थ्रू किसी को ब्रेक करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे बुक में एग्जांपल दे रखा है वाटर का. वी हैव ए कंटेनर एंड हैविंग अ वाटर. जब इसमें करंट पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. दैट इज़ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द वाटर, बाय द इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक दूसरे को डिस्प्लेस करना. जैसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट हमेशा लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, यहाँ पर
आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और कॉपर रिएक्शन से बाहर आ गया है एंड इट विल फॉर्म आयरन सल्फेट। इसमें एलिमेंट एंड कंपाउंड के बीच में रिएक्शन हो रही है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या एक कंडीशन है, वन इज एलिमेंट एंड अनदर वन इज द कंपाउंड। सो मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। इसका सेकंड टाइप है डबल डिकम्पोजिशन, जिसमें दोनों कंपाउंड रिएक्ट करेंगे। दिस इज़ कंपाउंड, दिस इज़ कंपाउंड, इट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, सोडियम सल्फेट एक्वस है, एक्वस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, विद वाटर के साथ में है। बेरियम क्लोराइड भी एक्वस है, दैट मीन्स वाटर के साथ में है। और यहाँ पर बेरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है और ये सॉलिड फॉर्म में है। इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ कम टू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यहाँ पर सीधा सा मतलब ये बता रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दो चीज़ें हो गई यहाँ पर, फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड दैट इज़ कॉल्ड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों ही कंसेप्ट ऑक्सीडेशन के हैं। रिडक्शन इज़ जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हमने लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इन द ऑक्सीडेशन व्हाट वाज दैट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो दीज कंडीशंस आर अपोजिट टू ईच अदर। इट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, बोथ द रिएक्शन मूव साइमल्टेनियसली, साथ साथ चलते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, कॉपर ने ऑक्सीजन लूज़ किया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया। तो लास्ट में हमने पहले समझा था दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन पर वापस आते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसके साथ हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। सो हाइड्रोजन इज गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है ये, हाइड्रोजन इज गेट ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन किस में ऑक्सीडाइज हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है वाटर के अंदर, ठीक है। एंड साथ में ये चीज़ हमको नज़र आ रही है दैट कॉपर इज़ रिलीजिंग ऑक्सीजन। तो कॉपर का क्या हो गया, इट इज़ रिडक्शन, कॉपर का रिडक्शन है। सो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज़ वाई हाइड्रोजन इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड मोर ओवर कॉपर में क्या हुआ है, कॉपर ने लूज़ किया ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया कॉपर का। सो दैट इज़ वाई कॉपर इज़ द रिड्यूसिंग। कॉपर ने किस में हेल्प किया है, कॉपर ने ऑक्सीडेशन में हेल्प किया है, दैट इज़ वाई कॉपर इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड हाइड्रोजन ने क्या किया है, रिडक्शन में हेल्प किया है, हाइड्रोजन इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। सॉरी, आई थिंक सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक गिव द रॉन्ग वन कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीडेशन, दैट इज़ वाई ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन, तो इसके साथ वर्ड जुड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट। इज दिस क्लियर। अब आता है इसका लास्ट पार्ट, दैट इज़ द कोरोजन। कोरोजन के बाद एक रेंसिडिटी और बचेगा। कोरोजन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी सब्सटेंस के साथ में एसिड, वाटर या मॉइस्चर रिएक्ट करता है तब उस सल्फेट का सरफेस का ऑक्सीडेशन हो जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द कोरोजन।
Rancidity is the oxidation and or the hydrolysis of fat. It is the oxidation or the hydrolysis of fat when it get exposed to the air, light or moisture or by bacterial action resulting unpleasant taste or odor. ये इसकी पहचान है. यहाँ से हमको पता चलेगा कि फूड का रेंसिडेशन हुआ है, फूड गेट रेंसिड. सो व्हाट द थिंग इज दैट देर इज द ऑक्सीडेशन और द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट. इस बात पर एम्फेसाइज करेंगे, फैट होना ज़रूरी है. फैट किस में प्रेजेंट होता है? ऑयल, बटर, घी, चीज़, ऑल दीज आर द फैट्स. इस फैट्स के अंदर इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाता है, तब उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी. नाउ रेंसिडिटी का रिजल्ट क्या है? अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ओडोर. ओडोर का मतलब यहाँ पर स्मेल से है, टेस्ट का मतलब उसका टेस्ट पता ही है सबको. सो these are the methods by which we can prevent the rancidity. Using antioxidants, second storing the food in the airtight container, refrigeration, ठंडा करके रखना, या फिर replacing oxygen in the container with the another gas. ये एग्जाम्पल है rancidity के. These are the methods to prevent the rancidity. So this is all about the chapter. I hope so you go through the all major topics to this chapter. If you have any doubt, you can please ask. Thank you.